हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स। दिस इज़ डॉक्टर करण परमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, classifying of transaction and summarizing of transaction. So in short, you can say recording, classifying and summarizing of financial transaction is the basic meaning of accounting. We have two systems, one is single entry system of account and another is double entry. Now in the area of accounting, generally double entry systems are used. Okay, so the business entity, whether it is large or small, every business entity should have a proper system of accounting to record its financial transaction, which ultimately enables the business to know its financial results at the end of particular financial period. Okay, so all the types of accounts which are prepared by the accountant are classified into broad 3 categories. Okay, first category is considered as personal accounts. Personal accounts are subdivided into 2 categories. There are real, or we can say natural personal account. Okay, first subcategory is natural personal account and second is artificial personal account. Then second category of account is considered as real account. Real account also divided into subcategories like tangible real account and intangible real account, and third is nominal account. Okay, now let's see the meaning of all 3 types one by one. First is personal account. As the name suggests, in this account the accounts of persons are maintained. Whether the person is natural person like you and me, that is human being, or person is artificial person like any partnership firm, company, association of persons and so on. Okay, so personal accounts is the account for persons like Mahesh account, Suresh account, Rajesh account, as well as ABC company account, XYZ company's account. Then you can say Rajesh and Ramesh partnership firm account and so on. Okay, so these are the examples of personal account. Say for an example, you purchased goods worth rupees 1000 from Ramesh. Okay, then Ramesh account is considered as a person account, that is a personal account. Okay, so it is a personal account, person's account, okay, which is related with persons. Then after, second category is, as we can see, real account. Real account is the accounts related with assets and properties, okay, which are again subdivided into 2 parts. As we can see, tangible accounts and intangible account. In tangible real account, assets which can have physical existence, can see, can touched by us is recorded. Okay, जो भी assets को हम देख पा रहे हैं, okay, हम उस assets को हम कह सकते हैं physical existence है, वो सभी assets जो है वो tangible real account में आएगी. एग्जाम्पल, फिक्स्ड असेट्स में मशीनरी जो है, देन फर्नीचर, प्लांट एंड सो ऑन, तो वो हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल रियल अकाउंट. ऐसे ही इनटेंजिबल रियल अकाउंट भी होगा, विच इज गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क. इनटेंजिबल मीन्स the assets which cannot be seen or touched, as well as not having any physical existence, but the assets have monetary values for the business. Let's say goodwill. So goodwill जो होती है उसको
फर्म उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है कैलकुलेट मेजर कर सकती है, कैलकुलेट कर सकती है। पेटेंट होती है तो उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती है, मेजर कर सकती है। तो उनको कहा जाएगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ओके, सो इन रियल अकाउंट दैट इज अकाउंट्स रिलेटेड विथ असेट्स एंड प्रॉपर्टी, उसमें हमारे पास दो सब कैटेगरी रहेगी। एक होगी टेंजिबल, यानी कि जो असेट्स हम देख सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और एक कैटेगरी रहेगी इनटेंजिबल, यानी कि जो असेट्स हम देख नहीं सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये तो बात हो गई रियल अकाउंट की। अब लास्ट जो अकाउंट रहेगा कैटेगरीज ऑफ अकाउंट में, जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या इंक्लूड होगा? देन nominal account is the account included, or we can say account prepared for income and expenses as well as losses and gains. ओके, सो आप कह सकते हो कि कोई इनकम है, कोई एक्सपेंस है, या तो फिर कोई गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो उनके रिलेटेड कोई अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो उनको कहा जाएगा अकाउंट्स अंडर द हेड ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। तो वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। उसके एग्जाम्पल कौन से रहेंगे? से फॉर एग्जाम्पल डेप्रिशिएशन। सो डेप्रिशिएशन इज कंसिडर एज अ वी कैन से लॉस और expenses for company. It is not paid in cash, but ultimately it is an expense. Then after you can say salary account. Okay, it is also expense by the company. और अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है इन्वेस्टमेंट में, तो वो भी आएगा नॉमिनल अकाउंट में, बिकॉज इट इज़ अ इनकम। या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी असेट्स, अगर प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो वो भी आएगा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। ओके, सो कोई भी इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है या फिर गेन है और लॉस भी, तो वो आएगा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वी हैव 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स, जिनके हेड के अंदर, यानी कि इन 3 बोर्ड कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए सारे अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं कंपनी में। तो पहला जो हमने देखा दैट इज पर्सनल अकाउंट। ओके, द अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन्स, ओके, विच हैव 2 सब कैटेगरी, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग रहेगा तो वो नेचुरल पर्सन कहलाएगा। अगर कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा, तो वो आएगा पर्सन्स अकाउंट में। सेकेंड कैटेगरी इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है वो असेट्स या प्रॉपर्टी के रिलेटेड होगा, और उसमें असेट्स और प्रॉपर्टी के अकाउंट्स जो है प्रिपेयर किए जाएंगे। उसमें सब 2 कैटेगरीज हमने देखी। एक तो है टेंजिबल अकाउंट्स, टेंजिबल रियल अकाउंट्स, जिनमें असेट्स को हम देख सकते हैं, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और सेकेंड इज इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, जिसमें असेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन कंपनी की जो वो इंटेंजिबल असेट्स होगी उसकी मॉनिटरी वैल्यू मेजर की जा सकती है, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। एंड थर्ड पार्ट इज, और थर्ड कैटेगरी इज नॉमिनल अकाउंट, जो अकाउंट्स इनकम, एक्सपेंडिचर्स और गेन्स और लॉस के रिलेटेड बनेंगे, उसको कहा जाएगा नॉमिनल अकाउंट। जिसमें हमने एग्जांपल देखे, सैलरी है, डेप्रिशिएशन है, बैड डेट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, प्रीमियम रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड सो ऑन। तो ये सारे अकाउंट्स रहेंगे अंडर द हेड ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। तो हमने 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट तो देख लिए। चलिए अब देखते हैं 3 गोल्डन रूल रिलेटेड टू दिस 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट। अगर ये 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो इसके रिलेटेड आपको 3 गोल्डन रूल जो है वो याद रखने हैं, जिसके आधार पर कोई भी स्टूडेंट कोई भी अकाउंट जो रहेगा इन 3 कैटेगरी में, कोई भी अकाउंट्स है उसमें इजीली एंट्री जो है कर सकता है। ओके, सो वी हैव 2 इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड क्रेडिट। सो डेबिट एंड क्रेडिट इज द इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट फॉर एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, कोई भी एक ट्रांजेक्शन की हमें डेबिट और क्रेडिट की सेम अमाउंट की इफेक्ट देनी पड़ेगी, लेकिन अपोजिट साइड, यानी कि एक अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखते हैं तो दूसरे अकाउंट में उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। सो इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट्स। तो ये जो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखे, ओके, ये जो 3 टाइप्स के अकाउंट्स हमने देखे, तो ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के लिए 3 गोल्डन रूल जो है वो दिए गए हैं। ओके, हर एक अकाउंट
जो कैटेगरी है वो हर एक अकाउंट कैटेगरी के लिए एक गोल्डन रूल है। अगर आपको पर्सन अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट जो हमने देखा वो पर्सन अकाउंट्स में कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट इज द फर्स्ट गोल्डन रूल। से फॉर एन एग्जाम्पल, ABC company purchased 10,000 rupees goods from Mahesh. Mahesh is the personal account, okay, and Mahesh is the giver in this condition. Why? Because company is purchase the goods and Mahesh is give the goods. So, as per first golden rule, we can credit the giver. Okay, debit the receiver and credit the giver. So here Mahesh is the giver, so we credit the Mahesh account. Likewise, suppose company sells 10,000 rupees goods to Mahesh. अगर हम कंपनी ने कोई सेल किया है कोई चीज़, उस कंडीशन में जो महेश रहेगा वो रिसीवर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको गुड्स जो है वो रिसीव हो रहे हैं। तो अगर महेश का जो पर्सनल अकाउंट है उस कंडीशन में क्या होगा? डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। सेल किया है तो सेल टू महेश यानी कि महेश को कुछ गुड्स रिसीव होगा, सो डेबिट द रिसीवर। एंड महेश अगर कोई चीज़ कंपनी को सेल कर रहा है, कंपनी परचेजर है, उस कंडीशन में महेश इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर, उसमें ये रहेगा। ओके, ये मैं बात कर रहा हूँ अगर गुड्स जो है वो क्रेडिट पे परचेज किए जा रहे हैं या तो सेल किए जा रहे हैं। अगर गुड्स जो है वो कैश में परचेज या सेल किए जाएंगे तो पर्सन का जो नाम है वो नहीं आएगा, तो वहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम देखते हैं कि गुड्स, सपोज हम करते हैं कि गुड्स जो है वो क्रेडिट पे परचेस या सेल किए गए हैं, तो पर्सन का अकाउंट, अगर वो पर्सन कोई चीज़ रिसीव कर रहा है तो अकाउंट डेबिट होगा। अगर कोई चीज़ उसको, वो पर्सन कोई चीज़ जो है वो दे रहा है या गिवर है तो उसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। देन आफ्टर सेकेंड गोल्डन रूल रिलेटेड टू रियल अकाउंट। जो हम असेट्स या प्रॉपर्टी के लिए अकाउंट्स बनाते हैं उसके लिए सेकेंड गोल्डन जो रूल है वो क्या रहेगा? डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। इसको अगर हम समझें तो जो भी चीज़ कंपनी में आएगी असेट्स के रूप में तो उसको डेबिट करना है, यानी कि डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। अगर कोई भी असेट्स कंपनी सेल कर रही है, कोई भी असेट्स कंपनी से जा रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं। कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹1 लाख, मशीनरी कम्स इन, देन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, डेबिट वॉट कम्स इन, एंड सेकेंड इज 10,000 रुपीज़ फर्नीचर इज सोल्ड। तो उस कंडीशन में फर्नीचर अकाउंट जो है वो क्या करना पड़ेगा? हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर क्या हो रहा है? कंपनी से जा रहा है। सो क्रेडिट वॉज गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड थर्ड गोल्डन रूल रिलेटेड टू थर्ड कैटेगरी ऑफ अकाउंट, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है उसके लिए गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। जो भी लॉस है, एक्सपेंसेस है, उसको डेबिट करो। जो भी इनकम है या तो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है, उसको प्रॉफिट और गेन भी आप कह सकते हो, उसको क्या करो? क्रेडिट करो। कंपनी सैलरी पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही है, तो ये सारे एक्सपेंसेस कंपनी के लिए है, तो उसको कंपनी क्या करेगी? ये गोल्डन रूल के मुताबिक उसको करेगी डेबिट। ओके, उसको डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। सेम वे कोई इनकम है, लाइक इनकम ऑफ इंटरेस्ट, ओके, इनकम फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई इनकम हुई है, ओके, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी असेट्स, तो ये सारी चीज़, इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी? वो सारी चीज़ें क्रेडिट होगी। ओके, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स और प्रॉफिट। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उसके लिए हमारे पास 3 गोल्डन रूल है। कोई भी स्टूडेंट अगर ये 3 गोल्डन रूल जो है वो याद रखे तो अकाउंट्स प्रिपेयर करने में कहीं भी उसको
जो है परेशानी नहीं होगी। सो गोल्डन रूल फॉर पर्सनल और नॉमिनल पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. Golden rule for real account that debit what comes in and credit what goes out. Golden rule for nominal account is debit all expenses and losses and credit all income and gains. ओके, तो हमारी प्रैक्टिस के लिए चलिए देखते हैं 10 एग्जाम्पल्स. ओके, मैं आपको चांस दूंगा, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो. ओके, मैं अकाउंट जो है वो अकाउंट का नाम यहाँ पे बताऊंगा, आपको गेस करना है कि वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स में से है, रियल अकाउंट्स में से है या फिर नॉमिनल अकाउंट्स में से. आपको गेस करना है. मैं आंसर भी जो है वो साथ साथ दूंगा, लेकिन ट्राई करना आप पहले गेस करो फिर जो है वो आंसर देखो. मैं आपको 2-3 सेकेंड का टाइम भी दूंगा. तो पहला जो अकाउंट है, से फॉर एग्जांपल पार्थ अकाउंट. सो पार्थ अकाउंट जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? यस, पार्थ अकाउंट जो है वो आएगा पर्सनल अकाउंट में. उसके बाद हम देखते हैं शिवालिक कंपनी अकाउंट. शिवालिक कंपनी अकाउंट ये किस में आएगा? यस, ये भी आएगा पर्सनल अकाउंट में. वाई? बिकॉज इट इज़ ए आर्टिफिशियल पर्सन. जैसे कि मैंने कहा 2 तरह के पर्सन हो गए, एक नेचुरल पर्सन, एक और दूसरे हो गए आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल में हम पार्टनरशिप ले सकते हैं, कंपनी ले सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट ले सकते हैं एंड सो ऑन. तो शिवालिक कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, सो आएगा पर्सनल अकाउंट में. उसके बाद अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. ये किस में आएगा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. यस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आएगा रियल अकाउंट में, और उसमें भी जो सब कैटेगरी है उसमें टेंजिबल रियल अकाउंट में. वाई? बिकॉज जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहेगी उसका हम फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका होगा, हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए. उसके बाद देखते हैं गुडविल. ओके, जो गुडविल रहती है, गुडविल किस में आएगी? गुडविल, यस, गुडविल इज कम्स अंडर रियल अकाउंट. ओके, एंड अंडर दैट सब कैटेगरी इज intangible real account. So goodwill is एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट, और उसमें भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो इंटेंजिबल रियल अकाउंट, क्योंकि गुडविल को हम देख नहीं सकते, उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, वो इंटेंजिबल असेट्स है इसलिए. उसके बाद देखते हैं 5th एग्जाम्पल, दैट इज डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन किस में आएगा? अभी मैंने बताया. यस, डेप्रिशिएशन कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, though it is a non cash but it is a expense. उसके बाद देखते हैं 6th एग्जाम्पल, दैट इज सैलरी. सैलरी किस में आएगा? सैलरी स्पेसिफाई करता हूँ, सैलरी पेड. ओके, सैलरी पेड बाय कंपनी. यस, इट इज कम्स अंडर अगर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इट इज अ एक्सपेंसिस, सो हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में उसको रखेंगे. उसके बाद 7th इज इंटरेस्ट रिसीव्ड. ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अगेन कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट. सो क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो इनकम है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगी. उसके बाद 8th देखते हैं मैत्री पार्टनरशिप फर्म अकाउंट. ओके, ये किस में आएगा? यस, इट इज कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट. वाई? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म इज कंसिडर एज आर्टिफिशियल पर्सन अंडर दिस कैटेगरीज. ओके, वो हम कैटेगरीज में आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में देखते हैं, तो वो आएगा पर्सनल अकाउंट में. उसके बाद 9th हम देखते हैं एग्जाम्पल मशीन. यस, मशीन कम्स अंडर रियल अकाउंट, और उसमें भी अगर स्पेसिफाई करें तो टेंजिबल रियल अकाउंट. एंड लास्ट इज से फॉर एग्जाम्पल पैटर्न. यस, पैटर्न इज ऑल्सो रियल अकाउंट बट इट इज इंटेंजिबल रियल अकाउंट. उसकी कैटेगरी में आएगा, तो वो रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है. तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताएं. मेरे इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो. अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.